everyone. Very good morning to all of you. Welcome to your lordships. We are going to start the online class for UP APO crash course UP APO examination 2022. So today the lecture is based on IPC. So in IPC we are going to discuss the overall pattern of the examination, what kind of questions are asked, and then once we'll cover the whole index. And I'll tell you that what kind of questions are asked in IPC, okay? From which part you need to focus more, okay? On which part you need to focus less, okay? So this is a crash course for your preliminary examination that is going to be conducted on 24th of August, okay? So in that case, first we'll cover the whole index so that you will have an idea and you don't have to study everything. And you will focus only as per the schedule of the examination, only as per the pattern of the examination, okay? So, presuming that you must have done your LLB and you are having some idea about the Indian Penal Code. Of course, in preliminary examinations, the questions are objective types and questions are asked objectively. Here, objectively means they are not going to give you some applied questions. Applied questions as in the problem-based questions. One or two illustrations may be there, but in APO examination, they are going to ask the question directly. Like I'll tell you, there was one question in APO from the side of IPC. Whenever I'm discussing IPC, that means IPC for, APO examination. So there was one question that who drafted the first draft of IPC? That was the question for UP APO examination, okay? And we all know it. It is Lord Macaulay, right? So such kind of direct question is asked in your preliminary examination. So you don't need to worry. You don't have to go so deep, okay? Just see the index, just see the pattern that we'll discuss. And then important questions we'll discuss, important parts we'll discuss, okay? And then once you'll qualify your preliminary examination, then we'll take the main session also, right? So let's start with Indian Penal Code. We all know it. This is Indian Penal Code. The very name is Indian Penal Code because it was made by, British Parliament for India. Secondly, it was made in the year 1860. That is very important. Okay. The date was, if you see, it is 1860, the year in which it was made. Implementation, it was 1862. Okay. Sometime what happens, when you see in your Bayer Act, you will find that the date given is 6th October 1860. Now this is the date on which IPC was drafted and passed. It was not the implementation date. IPC was implemented on 1862, 1st January. Okay? So it was implemented in 1862. So you need to be very, very clear about that because it is preliminary examination. We'll discuss the questions and mock test, we'll give everything. 1862 is the implementation date. 1860 is your date when the IPC was passed, right? Secondly, arrangement of sections. Now in APO examinations, the question is asked on IPC that how many sections are there, how many chapters are there, okay, and how many parts are there. So they can ask such questions. Sometimes to confuse you, they'll give you something like that 23 chapters, 510 sections, 510 sections, 22 chapters. So you need to study. When we'll see the index, all these answers you will get from the index only. You'll get from index only. कितने चैप्टर्स हैं आपके, कितने सेक्शंस हैं, ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन वहां पे आते हैं एपीओ में. Again, when you will find that these chapters are there, these sections are there, apart from that, there are certain amendments that have been made in IPC. Important amendments, okay? Recent trend is that they asked about 3 amendments, major amendments, and those are your 2013, 2018. And one amendment that was done in IPC, okay, that is very, very important
that you need to understand, okay, that is your 1984. Okay, sometimes they ask this question, okay, because amendments were there, certain sections were inserted, certain changes were made, so that you need to understand. Now in APO examination the question may be asked that on which date your 2018 amendment was implemented, कब implement हुआ ये, so that you need to see from the 2018 Amendment Act. So that we'll discuss, you know, one by one. When, on which date 2013 Criminal Law Amendment Act that changes IPC was implemented, what was the date, whether it was April, whether it was October, whether it was September. Okay, so in APO examination, basically we all know that APO is Assistant Prosecution Officer एग्जाम, APP जिसको आप बोलते हैं, जो पुलिस के साइड से प्रोसिक्यूशंस करती है, स्टेट के साइड से प्रोसिक्यूशंस करती है कोर्ट में. ओके, नाउ इन दैट केस you need to see and observe objectively, very very carefully. Okay, you don't have to go in deep, just see that how objective questions are asked. Okay, तो बहुत सिंपल है, बेयर एक्ट उठाइए, बेयर एक्ट के इंडेक्स को चेक कर लीजिए and you will get the answers. Okay, so before moving to the definition part or any other part, first let's discuss the index of IPC, only index part. Okay, first we'll discuss the index and then we'll come to other things, the explanations, the descriptions and the questions, the last year papers that we'll discuss. Okay, see, before starting that, I'll tell you that here we are going to cover the whole syllabus of UPAPO, your evidence, IPC, CRPC, police regulation, GSGK. Okay, in 21 days, primarily focusing on your preliminary examination. Preliminary is very important क्योंकि एक बार आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं तो फिर आपकी जितनी नॉलेज है वो आप दिखा सकते हैं. प्रीलिम्स में नॉलेज के साथ साथ आपको बहुत स्मार्ट और बहुत लिमिटेड स्टडी करनी है एंड यू विल क्वालिफाई द एग्जाम, राइट. सो टू मैनेज दैट विल प्रोवाइड द लेक्चर्स, विल गिव यू द स्टडी मटेरियल्स एंड ऑल्सो विल गिव यू द मॉक टेस्ट्स, ओके, दैट द इंस्टीट्यूशन हैज प्रिपेयर्ड फॉर यू and you will attempt that and then you will get the recorded modules also of this, right. So let's see that what is given in your index part of IPC. Okay, so Indian Penal Code arrangement of sections, that is chapter 1. chapter 1 से आपके क्वेश्चन आते हैं. chapter 1 से आपके किस तरह के क्वेश्चन आएंगे कि जुरिस्डिक्शन क्या है किसी भी स्टेट का, IPC का, IPC क्या बाहर के स्टेट पे लगती है या नहीं, इसके इलस्ट्रेशंस इसमें आते हैं या नहीं. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी नीड टू डिस्कस इट. ओके, दिस टाइटल, एक्सटेंट एंड ऑपरेशन ऑफ द कोड, दिस फ्रॉम दिस वन क्वेश्चन वुड डेफिनेटली कम. ये एपीओ में भी आएगा, आपके जुडिशरी में भी आएगा, एक क्वेश्चन इससे जरूर आता है. देन योर 3 and 4 आर इंपॉर्टेंट. वन क्वेश्चन इज ऑलवेज आस्क्ड फ्रॉम सेक्शन 3 and 4. नाउ व्हेन आई एम सेइंग दैट क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम 3 and 4, दैट मीन्स इट विल बी आस्क्ड फ्रॉम द सेक्शंस. दो तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में. पहला, जो डायरेक्ट सेक्शन से पूछेंगे, अंडर विच सेक्शन इट इज गिवन. मैं भी आऊंगा तो आपको इंडेक्स पार्ट में बताऊंगा अंडर विच सेक्शन इट इज नॉट गिवन, राइट. तो एक तो ये हो गया आपका. दूसरा, वो आपके सेक्शन के अंदर जो कंटेंट है उससे क्वेश्चन पूछता है. तो ये वाले जो पार्ट हैं हियर, the sections are not asked, the section numbers are not asked, rather the content within that section is asked. ठीक है, तो यहां पे आपको कंटेंट को पढ़ना पड़ेगा. 1 2 3 4 5 तक अगर आप कंटेंट इसको रीड कर लेंगे, इट इज जस्ट अ प्लेन रीडिंग, सो you'll get to know. Okay, then your chapter 2 that talks about general explanations. Okay, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पे डेफिनेशंस दी हुई हैं आपकी सारी. The definition clause is given in this part, and in this part your general sub exceptions are given. Sense of expression कभी कभी ये पूछ लेता है आपसे, ठीक है. Then you just have to know the section numbers. जैसे जेंडर है, इसका आपको सेक्शन नंबर पढ़ना है, कौन सा है. नंबर, मैन एंड वुमेन, इसके आपके कंटेंट से आते हैं.
मैन मीन्स मैन ऑफ एनी एज। आप एपीओ के पेपर्स एनालाइज करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये, ठीक है। मैन ऑफ एनी एज, आई एम अगेन टेलिंग यू, once we'll complete this, I'll discuss the APO paper also. What kind of questions have been asked and what are the answers, okay, along with the mocks. So, man and women. तो इसमें man किसको कहते हैं? Man means male of, you know, male human being of any age. तो ये पूछता है कंटेंट से. Then comes person, ये भी आपके कंटेंट से आता है क्वेश्चन. 12, 13, 14, 15, 16 आप देखेंगे ये दोनों रिपील्ड है, ये ओमिटेड है. सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट ये क्वेश्चंस में नहीं आता है, तो इस पे आपको बहुत ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है. देन गवर्नमेंट कैन बी आस्क्ड, इंडिया कैन बी आस्क्ड, सिंस अभी आपका जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद ये वैकेंसी आई है, तो इसमें हो सकता है इंडिया की डेफिनेशन आपसे पूछ ले, हो सकता है प्रिलिमिनरी में इंडिया की डेफिनेशन आपसे पूछ ले, ओके. देन जज, इससे क्वेश्चन आता है, इसके कंटेंट से और सेक्शन नंबर दोनों से क्वेश्चन आता है. कोर्ट ऑफ जस्टिस, पब्लिक सर्वेंट, इससे भी आपके कंटेंट से क्वेश्चन आता है, ओके. मूवेबल प्रॉपर्टी आपके कंटेंट, व्हेन आई एम सेइंग कंटेंट से क्वेश्चन आता है, दैट मींस यू आर सपोज टू रीड इट, यू आर सपोज टू रीड इट. ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन दिस पार्ट, बट यू आर सपोज टू रीड व्हाट इज मूवेबल प्रॉपर्टी, व्हाट इज, ओके. रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस, ये सेक्शन नंबर से आते हैं क्वेश्चन इसके, ओके. डिसऑनेस्टली, इसके भी सेक्शन नंबर आपको याद करने पड़ेंगे. ये सेक्शन नंबर पूछता है डिसऑनेस्टली किस में दिया हुआ है, किस सेक्शन में दिया हुआ है. फ्रॉडुलेंटली सेक्शन नंबर आपको याद करना है. रीजन टू बिलीव, ये भी आपको सेक्शन नंबर याद करना है. 27, 28, 29, 29A, 30, 31, 32, 33 एंड 34. यहां तक आप देखेंगे तो ये आपके सिर्फ और सिर्फ नंबर्स पे बेस्ड हैं. यू नीड टू मेमोराइज कि किस सेक्शन में दिया. यू जस्ट हैव टू एनालाइज योर इंडेक्स कि 24 में क्या दिया है, 25 में क्या दिया है, 29 में क्या दिया है, 30 में क्या दिया है, 32 में क्या दिया है और 33 में क्या दिया है, ठीक है. आप बस इसको एनालाइज कर लीजिए और आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यूपीएपीओ में, क्योंकि इसमें कंटेंट पे आपके क्वेश्चन नहीं आते हैं. इफ यू विल सी डायरेक्टली दे विल आस्क द क्वेश्चन ऑन द नंबर, ओके. देन सी 34, we all know it is a rule of, you know, constructive liability, that is your common intention. This you need to study of course. इसके साथ आपको इसके केस लॉज भी पढ़ने हैं, ठीक है. आपने अपने एलएलबी कोर्स में अपनी प्रिपरेशन में पढ़ा होगा, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट केसेस हैं 34 में, ठीक है. महबूब शाह का एक केस है इसमें, वो आपको पढ़ना है. उस केस का नाम क्या होता है, इंडस वैली रिवर केस भी उसको कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, वो आपको ये पढ़ना है इसमें. सो यू नीड टू रीड इट अलॉन्ग विद द केस लॉज, आपको ये केस लॉज के साथ पढ़ना है, ओके. व्हेन सच एन एक्ट इज, देन योर 35, 36, 37, 38, you have to read these sections. I'll tell you why. Sometimes rather than asking question from 34, they'll ask question from 35. Common intention, similar intention. So आपको बस ये रीड कर लेना है, आपको बेयर एक्ट से बाहर कहीं नहीं जाना है, सिर्फ एक प्लेन रीडिंग इसकी, ओके. एंड यूल गिव द आंसर. नाउ अगेन इस चैप्टर में यू विल फाइंड 38, यू विल हैव टू रीड 39 वॉलेंटरली. सेक्शन नंबर इसका याद कर लीजिएगा, ओनली फ्रॉम द सेक्शन नंबर, ओके. आप इसका सेक्शन नंबर याद करिएगा कि क्या आ रहा है. 40, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. 40, इसके कंटेंट आपको याद होने चाहिए कि ऑफेंस का मतलब क्या होता है. स्पेशल लॉ, लोकल लॉ, इलीगल. स्पेशल लॉ, लोकल लॉ, आप सिर्फ सेक्शन नंबर याद कर लीजिएगा, ओके. इलीगल वर्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके कंटेंट से क्वेश्चन आएगा आपको. कंटेंट इसमें पूछा जाता है कि इलीगल है क्या, ठीक है. लीगली बाउंड टू डू,
इसके भी कंटेंट से आएगा। इंजरी, इसके भी कंटेंट से क्वेश्चन आते हैं। सो यू नीड टू रीड द सेक्शन. व्हेन आई एम सेइंग रीड द सेक्शन डज नॉट मीन दैट यू हैव टू रीड इट गोइंग इन डीप. Just have a plain reading of the section and that would be sufficient. Life and death, इसके सेक्शन नंबर्स याद रखिएगा लाइफ एंड डेथ के. एनिमल सेक्शन नंबर याद रखिएगा. एनिमल से कभी कभी कंटेंट पे क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है. वेसल, ईयर, ओके, सेक्शन. देन कम्स ओथ. चूंकि ये एपीओ का एग्जाम है इसलिए ओथ पे आपके कंटेंट के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है. गुड फेथ, ये आपके कंटेंट का क्वेश्चन आएगा. हार्बरिंग, ये याद रखिएगा, हार्बरिंग में क्या एक्ट होते हैं इस पे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है. एंड योर सेकेंड चैप्टर इज ओवर. इट इज वेरी सिंपल. आप इसके सेक्शंस निकाल लीजिए, सेक्शन नंबर्स को देख लीजिए, एक बार एक चार्ट बनाइए, एक बार बैठ के याद कर लीजिए कि कौन कौन से सेक्शन नंबर्स हैं, और उसमें से सिर्फ जिसके कंटेंट्स मैंने आपको बताए हैं पढ़ने के लिए, सिर्फ उसके कंटेंट्स पढ़ लीजिए, और आपका ये 2 चैप्टर पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाएगा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए. ओके. थर्ड देखिए इसमें क्या दिया हुआ है. पनिशमेंट्स. ये एपीओ के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन नहीं आता है. देखिए आपको कुछ चीज़ें बहुत स्मार्टली आपको एनालाइज करनी पड़ेंगी. ओके. यूपी एपीओ का जो पेपर होता है वो पूरा कितने मार्क्स का होता है आपको पता होगा, ठीक है. यूपी एपीओ के पेपर के बारे में आई एम प्रिज्यूमिंग कि आपको आइडिया है, आपने लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर देखा है. कितने मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है वो स्टूडेंट्स मस्ट बी नोइंग, ठीक है. 150 नंबर का, 150. तो 150 में 150 आपकी आईपीसी नहीं आने वाली है. आईपीसी का रेशियो कितना रहेगा, 35 to 40 क्वेश्चंस का, ठीक है. यही है आपका 30 से 40 के रेंज में ये क्वेश्चंस पूछते हैं, डिवाइड कर देते हैं, आप देखेंगे सिलेबस के हिसाब से, ठीक है. तो ये आपका, तो ये 30 से 40 क्वेश्चंस उनको इन्हीं 5 से 11 सेक्शंस में से बनाने हैं. तो वो सारे क्वेश्चंस तो बनाएंगे नहीं, तो वो क्या करते हैं, डेफिनेशन क्लॉज से कुछ सेक्शन बनाएंगे, कुछ आपके इंपॉर्टेंट पार्ट्स को उठा लेंगे. तो ये वाला जो आपका पार्ट है, ठीक है, इससे उन्होंने कुछ बहुत स्पेसिफिक सेक्शंस को चुना है. जैसे 53 उन्होंने चुना है क्योंकि इसमें पनिशमेंट के बारे में बताता है कि कितनी तरह की पनिशमेंट है इसमें 53 में. इफ यू लुक एट सेक्शन 53 इन योर बेयर एक्ट यू विल फाइंड दैट देयर आर 5 काइंड्स ऑफ पनिशमेंट, ठीक है. अगर कहिए तो मैं आपके लिए इसको थोड़ा सा रीड कर देता हूं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए. The punishment to which offenders are liable under the provision of this code are death, imprisonment for life, then your imprisonment which is of 2 descriptions, namely rigorous, that is with hard labor, and then simple punishment. Okay, simple imprisonment. Fifthly, your forfeiture of property. I am saying fifthly क्योंकि आपकी एक punishment इसमें से repeal हो गई है. Okay. एंड देन सिक्स्थली इज फाइन. देखिए अगर एग्जामिनर को आपको थोड़ा सा ट्रिक करके क्वेश्चन देना होगा, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि एपीओ के एग्जाम में इतना ट्रिक करके क्वेश्चन नहीं देते हैं, ओके. बट फिर भी टू एन एक्सटेंट आई एम टेलिंग यू, सपोज अगर एग्जामिनर को आपको ट्रिक करना है तो वो क्या करेगा, वो कह देगा विच इज द 6th पनिशमेंट इन आईपीसी. सो द एग्जामिनर में आज द क्वेश्चन विच इज द 6th पनिशमेंट इन आईपीसी. अब आप देखिए 6th पनिशमेंट कौन सी है. आपको लगेगा आईपीसी में तो 5 ही पनिशमेंट है, बताया भी हमें यही गया कि 5 है. तो 5 इसलिए है क्योंकि 6th पनिशमेंट जो आपकी थी वो ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ थी, जिसको हटा दिया गया था, ठीक है. इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ जो था, इस पनिशमेंट को, जो हमारी 3rd पनिशमेंट थी 6 में से, उसको हटा दिया गया. तो हमारे पास 5 ही पनिशमेंट है. हाँ, उनका नंबर है फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली इज रिपील्ड, फोर्थली, फिफ्थली एंड सिक्सथली. तो अगर आपसे बोला कि 6th पनिशमेंट कौन सी है तो वो आपका आंसर होगा फाइन. अगर ये ट्रिक करना है, हालांकि यूपी एपीओ एग्जाम में इतने ट्रिक्स नहीं होते, तो आप याद रखिएगा सेक्शन 53 में कि कितनी तरह की पनिशमेंट है. तो 5 पनिशमेंट है. कौन कौन सी है, तो डेथ पेनल्टी है, लाइफ इंप्रिजनमेंट है, फिर इंप्रिजनमेंट है जो 2 तरह की होती है, रिगरस और इसके बाद सिंपल, फिर आता है आपका फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी और उसके बाद आता है आपका फाइन,
ठीक है, तो ये 5 ही पनिशमेंट है, ये याद रखिएगा। आपको ये नहीं पढ़ना है, 54, 55 आपको जरूर पढ़ना है एपीओ एग्जाम के लिए। जुडिशरी के लिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एपीओ के लिए है। वहां पे आपसे पूछा जाता है कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ कैसे होती है, कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ लाइफ इंप्रिजनमेंट कौन करेगा। इसमें एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इफ यू लुक एट द सेक्शन, इसमें एक वर्ड है, ठीक है, अभी मैं आपको सिर्फ इंडेक्स पार्ट डिस्कस कर रहा हूं, आई एम जस्ट गिविंग यू द ओवरव्यू। इसमें एक वर्ड है जहां पे लिखा होता है, इन एवरी केस इन विच द सेंटेंस ऑफ डेथ शैल हैव बीन पास्ड द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में आपसे पूछ लेता है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब क्या है, तो वो आपके यहीं पे दिया हुआ है। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में भी इधर सेंट्रल गवर्नमेंट और दी प्रोविंशियल गवर्नमेंट दैट इज स्टेट गवर्नमेंट, दोनों हो सकती है। क्योंकि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की बात होती तो वो वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट लिख देता, दे वुड हैव रिटन सेंट्रल गवर्नमेंट, बट दे हैव ओनली रिटन दिस दैट एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में कम्यूट, ठीक है। तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कोई भी हो सकती है। ये दोनों सेक्शंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको ये दोनों के कंटेंट पढ़ने हैं, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मैंने जो अभी आपको समझाया, ठीक है। इसके बाद सेक्शन 57 इज वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रैक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट, ठीक है। फ्रैक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट, इन कैलकुलेटिंग फ्रैक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट imprisonment फॉर लाइफ शैल बी reckoned एज इक्विवेलेंट टू imprisonment फॉर 20 years। तो क्या कह दिया इन्होंने, सिंपल, कि जब हम किसी भी पनिशमेंट को काउंट करेंगे उसका फ्रैक्शन लेना होगा कि हाफ पनिशमेंट देनी है, डबल पनिशमेंट देनी है, थर्ड पनिशमेंट देनी है, तो लाइफ इंप्रिजनमेंट को हम कैसे उसको काउंट करेंगे। तो उन्होंने कहा इट शैल बी रेकन्ड एज 20 ईयर। ये क्वेश्चन आपके यूपी प्रीलिम्स में आता है एपीयू के, तो आप बस इतना याद रखिएगा, लाइफ इंप्रिजनमेंट का मतलब क्या होता है, 20 ईयर्स। आईपीसी में फॉर द पर्पज ऑफ रेकनिंग लाइफ इंप्रिजनमेंट मीन्स लाइफ इंप्रिजनमेंट, ओके। इसके बाद ये सारे आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अमाउंट ऑफ फाइन एक बार आप पढ़ लेंगे शॉर्ट में, शायद इससे पूछ ले क्वेश्चन। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एपीयू एग्जामिनेशन में आता है वो है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, ठीक है। आपको सेक्शन एक बार सारे रीड कर लेने हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, मैं आपको बस वो बता रहा हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। सेक्शन 73 सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का एक तरीका होता है, जो लिमिट्स ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट 74 में दिया हुआ है, ठीक है। आप 73 और 74 जब आईपीसी का ओपन करेंगे सो आपको मिलेगा, इफ यू हैव द वेयर एक्ट, आई जस्ट रीड इट आउट। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, ओके, जिससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है मैं आपको वो बस रिफ्लेक्ट कर रहा हूं, वो आपको बताना चाह रहा हूं। व्हेनेवर एनी पर्सन इज कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस फॉर विच अंडर दिस कोड द कोर्ट हैज पावर टू सेंटेंस हिम टू रिगरस imprisonment, the court may, by its sentence, order that the offender shall be kept in solitary confinement for any portion or portion of the imprisonment to which he is sentenced, not exceeding 3 months in the whole, according to the following scale, that is to say। तो आपसे ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होता है वो मैक्सिमम कितने ड्यूरेशन का हो सकता है, ठीक है। तो मैक्सिमम ड्यूरेशन है नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ्स। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट आपकी जो इम्प्रिजनमेंट है उसमें मैक्सिमम आपको 3 महीने के लिए दी जा सकती है, और इस 3 महीने का भी एक तरीका है। वो तरीका क्या है, देखिए, अ टाइम नॉट एक्सीडिंग 1 मंथ इफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट शैल नॉट एक्सीड 6 मंथ्स, ठीक है। अ टाइम नॉट एक्सीडिंग 1 मंथ इफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट शैल नॉट एक्सीड 6 मंथ्स। क्या कह रहा है, अगर 6 महीने की पनिशमेंट है तो उसमें सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कितना रहेगा, सिर्फ 1 महीने। ये क्वेश्चन आपके आएंगे क्योंकि ये पुलिस के पार्ट से, जेल के पार्ट से रिलेटेड है, ठीक है। और एपीयू एग्जामिनेशन में इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको ये बस देख लेना है कि अगर 6 महीने तक की पनिशमेंट है 6 मंथ्स की, तो 1 महीने का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, ठीक है। अ टाइम नॉट एक्सीडिंग 2 मंथ्स इफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट शैल एक्सीड 6 मंथ्स एंड शैल नॉट एक्सीड 1 ईयर। 6 महीने से ऊपर की मिल गई पनिशमेंट, 6 मंथ से ज्यादा की लेकिन लेसर देन 1, तो कितने दिन का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट हो जाएगा, 2 महीने तक का, 2 मंथ्स का आपको मिल सकता है। ये आपको जज अवॉर्ड कर सकता है, ठीक है। अ टाइम नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ्स इफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट शैल एक्सीड 1 ईयर। 1 साल से ऊपर की पनिशमेंट है, ठीक है, तो मैक्सिमम जो आपको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट अवॉर्ड हो सकता है वो है 3 महीने का।
अब ये जो 1 महीने 2 महीने और 3 महीने का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है, इसकी लिमिट क्या होती है, इसका एग्जीक्यूशन कैसे किया जाता है, वो 74 में है। ये क्वेश्चंस चूंकि आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आते हैं, प्रीलिम्स में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट पे एक क्वेश्चन एपीओ में जरूर आता है, दैट इज व्हाई आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इट अ बिट, ओके। लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट इन executing a sentence of solitary confinement, such confinement shall in no case exceed 14 days at a time। आपको देखिए इसमें 3-4 चीजें याद रखनी पड़ेंगी, 3-4 चीजें आपको समझनी पड़ेंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। सिंस दिस कोर्स हैज बीन डिजाइन स्पेसिफिकली फॉर focusing the preliminary examination, that is why I am telling you the main things, main important things for APO examination। आप इसमें देखिए क्या कह रहा है 74 में, in executing a sentence of solitary confinement, such confinement shall in no case exceed 14 days at a time। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है that in case of solitary confinement, what is at a time, how much punishment can be given? Now options could be 14 days, 28 days, 42 days, 2 months, something like that। So आपको ये बिल्कुल क्लियर रहना पड़ेगा कि एक बार में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में 14 दिन से ज़्यादा की पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। तो अगर किसी को 1 महीने की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मिली थी जिसकी सज़ा थी 6 महीने तक की, उस 6 महीने में से 1 महीने उसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रहना था, तो उस सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में एक बार में लगातार ऐसा नहीं है कि आप 5 महीने रह गए और फिर 6ठे महीने आपको उठा के जेल में डाल दिया सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में। हो सकता है सिर्फ 14 दिन के लिए पहले डालेगा, ठीक है। 2 महीने की पनिशमेंट हो गई, 14 डेज के लिए आपको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कर दिया, ठीक। फिर 2 महीने की आपने सजा काट ली, फिर से 14 दिन की आपको क्या किया, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दे दिया। फिर आपने जब बाकी की पनिशमेंट कट कर ली तो 2 दिन के लिए बीच में फिर से सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कर दिया, तो आपका ये पूरा 30 दिन का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट भी कंप्लीट हो गया और एट अ टाइम 14 दिन से ज्यादा नहीं हुआ, ठीक है। आगे देखिए, such confinement shall not in case exceed 14 days at a time, with intervals between the period of solitary confinement of not less duration than such period, and when the imprisonment awarded shall exceed 3 months, the solitary confinement shall not exceed 7 days in any 1 month of the whole imprisonment awarded, with intervals between the period of the solitary confinement of not less duration than such period। तो वो क्या कह रहा है, अगर आपकी when the imprisonment awarded shall exceed 3 months, okay, the solitary confinement shall not exceed 7 days। 3 से 6 महीने का अगर पनिशमेंट है, अप टू में मान लीजिए उन्होंने 4 महीने की आपको सजा दे दी और उस 4 महीने में आपको 1 महीने का सॉलिटरी जाना है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, तो कह रहा है फिर 7-7 दिन आप करके देंगे, 7 डेज से ज़्यादा एक बार में नहीं होगा। तो बिल्कुल क्लियर है आपका कॉन्सेप्ट। 6 महीने वाली जो पनिशमेंट है उससे ऊपर वाली, ठीक है, 6 महीने तक की जो पनिशमेंट है या उससे ऊपर वाली तक की जो पनिशमेंट है, उसमें आप 14-14 दिन करके क्या देंगे, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। उससे कम की जो पनिशमेंट है 7-7 दिन आप देंगे। क्लियर? इसको आपको समझना है क्योंकि इसमें क्वेश्चन इसी तरह से पूछता है, वो बना के दे देगा कि 14 जनवरी को उसको पनिशमेंट हो गई 1 साल की, जिसमें सॉलिटरी कन्फाइनमेंट अवार्ड हुआ है 1 महीने का, तो एट अ टाइम उसको कितने दिन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जा सकता है। तो योर आंसर इज वेरी सिंपल, इट इज 14 डेज। बिल्कुल क्लियर ऐसे आपका ऑप्शन रहेगा, राइट। तो इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद हम आते हैं अपने चैप्टर 4 पे आईपीसी के, ठीक है, जो है आपका जनरल एक्सेप्शंस। चैप्टर 4 जो आपका जनरल एक्सेप्शन है। नाउ इस जनरल एक्सेप्शन में आप देखेंगे 76 से लेकर के 106 तक का सेक्शन है। इसके साथ मैंने आपको बताया है 6 और 7 भी पढ़ा जाता है, तो कभी कभी जनरल एक्सेप्शंस का कोरिलेटिंग सेक्शन वो एपीओ में पूछ लेता है, ठीक है। तो याद रखिएगा बस 6 इसके साथ पढ़ा जाएगा। जनरल एक्सेप्शन में जो जनरली क्वेश्चंस आते हैं एपीओ एग्जामिनेशन में, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उसमें 76 और 79 पे पूछा जाता है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ लॉ पे एंड मिस्टेक ऑफ लॉ, ओके। उसके बाद जो उसका क्वेश्चन है एक्सीडेंट पे आता है, ठीक है। एक्सीडेंट के बाद आपका क्वेश्चन आता है 82, 83 पे।
सिर्फ नॉर्मल इसमें एज लिमिट आपको पता करनी है बच्चे की क्या होती है। 85 से क्वेश्चन आता है, 89 और 88 से क्वेश्चंस पूछते हैं जिसमें एज लिमिट होती है, कंसेंट वाले जो पार्ट हैं उससे। और फिर आपका ये 95, ये भी कभी कभी एपीओ एग्जामिनेशन में आता है 95, ठीक है। आफ्टर 95 आपके जो मेन एपीओ में क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस से। ये आपका लिमिटेशन सेक्शन 99, 100 और 106, इन 3 से सबसे मेजर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूपीएपीओ में। जब मैं कह रहा हूं मेजर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आपको थोड़ी सी सर्टेनिटी होती है कि इसी से क्वेश्चन आता है, अदरवाइज एग्जामिनर तो कहीं से भी क्वेश्चन बना देगा। तो आपको रीड तो पूरा करना ही है, ठीक है। इसीलिए हमने जो आपका कोर्स डिजाइन किया है वो इस हिसाब से किया है कि जितना चैप्टर हम आपको पढ़ाएंगे उससे आपके प्रिलिमिनरी का सिलेबस कवर हो जाएगा, उससे आपके जितने अप्लाइड क्वेश्चंस हैं वो कवर हो जाएंगे। इंडेक्स आपको बस एक बार रीड कर लेना है कि किसमें क्या होता है, दैट्स इट, ओके। देन कम्स योर लॉ ऑफ अबेटमेंट। लॉ ऑफ अबेटमेंट जो है ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ अबेटमेंट के जो क्वेश्चन आते हैं वो जनरली मेंस में आते हैं। इससे आपको एक सेक्शन में क्वेश्चन पूछ लेता है लॉ ऑफ अबेटमेंट का, जो है सेक्शन 107, ठीक है। और पनिशमेंट की इसमें क्वेश्चंस आ जाते हैं 11, 109, 115, 116 से, ठीक है। तो लॉ ऑफ अबेटमेंट में आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस आप पढ़ लीजिएगा 107 पढ़ लीजिएगा, इसके इलस्ट्रेशंस पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये अभी आपको जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो पूरा बताएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। एंड आफ्टर दैट आपको पनिशमेंट पढ़नी है क्योंकि पनिशमेंट के क्वेश्चंस उसमें आ जाते हैं, ओके। अदरवाइज प्रिलिमिनरी के लिए आपको लॉ ऑफ अबेटमेंट बहुत ज़्यादा नहीं देखना है, इस पर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है। देन नेक्स्ट इज योर डिजाइन। यूपीएपीओ में कभी कभी आपने देखा होगा डिजाइन पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा नहीं है, इसको अंदर भी आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ सेक्शन नंबर याद कर लीजिएगा इसके, ठीक है। 18, 19 एंड 20, इन तीनों के आप सेक्शंस देख लीजिएगा, शायद प्रिलिमिनरी में एक क्वेश्चन इसके सेक्शन नंबर पे पूछ ले, ठीक है। Criminal conspiracy, again this is a topic which is generally asked in your mains examination when it comes to UPAPO, okay. But sometimes they ask for the case laws on it. इस पे जो केस लॉज हैं वो पूछ लेते हैं आपसे, ठीक है, कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में केस लॉज कौन कौन से हैं, या क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की डेफिनेशन किस में दी है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की पनिशमेंट किस में दी है। तो ये सेक्शंस आप याद कर लीजिएगा प्रिलिमिनरी के हिसाब से, मेंस के हिसाब से बहुत ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट आपका चैप्टर 6 है ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट। यू विल सी अगेन इन दिस यू विल हैव टू स्टडी ओनली 2 इंपॉर्टेंट सेक्शंस, दैट इज योर वेजिंग वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसकी पनिशमेंट याद रखिएगा। वेजिंग वॉर में आपको ये मैच कराने को देता है, वेजिंग वॉर के एक्ट्स दे देगा, ये 4 सेक्शन एक साथ दे देगा, ये आपको 121, 121A, 22, 23, और इन्हीं का हेड नोट दे देगा और बोलेगा मैच द फॉलोइंग्स, इसको मैच कराओ, इनको मैच कराओ आप, ठीक है। देन जो आपके कंटेंट से क्वेश्चंस आते हैं वो आता है सेडिशन से। सेडिशन इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेडिशन पे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने वाला है। सेडिशन सब जुडिस है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको बहुत सीरियसली लिया है, तो हो सकता है उस केस का नाम आपसे पूछ लें। हो सकता है सेडिशन पे ये एक क्वेश्चन बना के दे दें कि सेडिशन कब इंसर्ट हुआ, किस अमेंडमेंट से ये आया, इसका पर्पस क्या है, इसकी पनिशमेंट क्या है। तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा, सेडिशन इस बार हो सकता है पूछा जा सके, ठीक है। इसके बाद इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा सेक्शन आपको नहीं पढ़ने हैं, बस एक बार हेड नोट आप देख लें। देन कम्स इन एपीओ एग्जामिनेशन योर अनलॉफुल असेंबली, ओके, योर अनलॉफुल असेंबली। सो अनलॉफुल असेंबली, इसके आपको कंटेंट देखने पड़ेंगे कि अनलॉफुल असेंबली में कितनी चीज़ें कवर हैं। इससे क्वेश्चन आता है, रॉइटिंग से क्वेश्चन पूछेगा कि रॉइटिंग की पनिशमेंट क्या है और इसका सेक्शन क्या है, सेक्शन नंबर, ठीक है। एक क्वेश्चन उसमें राइटिंग विद आर्म्ड विद डेडली वेपन, ये पूछता है। तो क्या होता है, कभी कभी हम राइटिंग्स पढ़ लेते हैं, उसके आगे के 2-3 सेक्शन छोड़ देते हैं। तो ये सेक्शंस
भी आप पढ़ लीजिएगा, इसमें भी क्वेश्चंस आपके आते हैं। ऑफ कोर्स हम भी इसको आपको बताएंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। 149 अगेन इट इज अ मैटर ऑफ मेंस। आप यहां से एक सेक्शन देखिए 153 से लेके 153B, ठीक है। 153 wantonly giving provocation with intent to cause riot if rioting be committed, if not be committed, okay. Promoting enmity between two groups on ground of religion। आजकल जिस हिसाब का सिनेरियो आपका चल रहा है, हो सकता है इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं एग्जामिनर भी जो होता है वो सोसाइटी से कनेक्टेड होता है, वो अफेक्टेड होता है, तो उसको सोसाइटी की जो चीज़ें पता चलती हैं उस पे क्वेश्चन फॉर्म करना उसके लिए इजी रहता है और वो उसके ब्रेन में स्ट्राइक भी करता है, ठीक है। तो जैसे आपको पता है इस समय भी रिलीजियस राइट्स और रिलीजियस चीज़ों को लेकर के बहुत सारे डिस्प्यूट चल रहे हैं, तो इन सेक्शंस पे क्वेश्चंस पूछता जाता है वैसे भी यूपीओ में। लेकिन आप ये 153A और इसकी पनिशमेंट ये आप देख लीजिएगा, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस, लैंग्वेज एटसेट्रा। 153AA पनिशमेंट फॉर नोइंगली कैरिंग आर्म्स इन एनी प्रोफेशन और ऑर्गेनाइजिंग और होल्डिंग और टेकिंग पार्ट इन एनी मास ड्रिल, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं प्रिलिमिनरी में। इसके बाद आपको इधर बहुत सारे सेक्शंस को पढ़ने की जरूरत नहीं है। चैप्टर 9 है आपका ऑफेंसेस रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट में क्वेश्चन पूछा जाता है एपीओ में, क्यों? क्योंकि एपीओ भी एक पब्लिक सर्वेंट है और जिसको बहुत सारे डिसओबीडियंस, बहुत सारे डिफाइंस झेलने पड़ते हैं, ठीक है। क्योंकि एपीओ ऑफिसर, दो इट इज एन एग्जीक्यूटिव पोस्ट, बट एपीओ इज अ ब्रिज बिटवीन द पुलिस एंड द कोर्ट, ओके। तो इसीलिए एपीओ ऑफिसर्स को कहा जाता है कोर्ट ऑफिसर्स, और कोर्ट साहब बोलते हैं उन्हें, ठीक है। तो इसमें से ये जो आपके 166 हैं, 166A, B, 168, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। क्योंकि इनका डायरेक्ट सेक्शन नंबर आपसे पूछ लेगा कि पब्लिक सर्वेंट डिसोबेइंग लॉ, इसका सेक्शन क्या है, इसकी पनिशमेंट क्या है। जनरली जो होता है वो 168 आप टारगेट कर सकते हैं, हो सकता है इस बार आ जाए, पब्लिक सर्वेंट अनलॉफुली इंगेजिंग इन ट्रेड, ठीक है। या फिर वो इसमें से किसी भी एक सेक्शन को उठा के आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। जनरली वो 166A पे भी पूछते हैं, ठीक है। तो आप इसको याद कर लीजिएगा, ये 166 से लेकर के और यहाँ तक 171 तक। जस्ट रीड द सेक्शन, नथिंग एल्स, ओके। चैप्टर 9A ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू इलेक्शंस। इलेक्शंस वगैरह के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपके यूपी एपीओ में कहीं नहीं आते हैं, इसमें आपको कुछ नहीं देना है। अगर आपको देखना है तो एक चीज़ आप देख सकते हैं इसमें, वो है सेक्शन 171B, ठीक है। ये एक ऐसे सेक्शंस हैं जो इफ दे आर आस्क्ड, इन दैट केस most of the students won't be able to answer it, so that is not going to fix your merit. So अगर ये क्वेश्चन आपके कभी आ भी जाते हैं और गलत भी हो जाते हैं तो उससे आपकी मेरिट पे कोई असर नहीं पड़ता, आप आंसर कर देंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये क्वेश्चंस मेरिट नहीं बनाते हैं, मेरिट बनाते हैं जो जनरल व्यू के क्वेश्चंस हैं आपके, ओके। चैप्टर 9 ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ द लॉफुल अथॉरिटी एंड पब्लिक सर्वेंट, इससे भी आपके क्वेश्चंस आते हैं। इसका मैं आपको बहुत स्पेसिफिक सेक्शन बताता हूँ कि कहाँ से इसके क्वेश्चन दिए जाते हैं। If you'll see, so the question is asked, 182 एक है, false information with intent to cause public servant to use his lawful power to the injury of another person. 186, 87, 88 इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको एपीओ में ये 4 सेक्शंस हैं, 82, 86, 87, 88, जहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में। तो आप सिर्फ सेक्शन नंबर याद रखिएगा, क्योंकि जनरली सेक्शन नंबर में ही यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कंटेंट पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। बहुत होगा तो वो आपसे पनिशमेंट पार्ट पूछ लेगा। सिर्फ और सिर्फ ये याद रखिएगा कि 182 में क्या दिया है, 183 में क्या है, 4 में क्या है, 5 में क्या है, 6 में क्या है, 7 में क्या है, 8 में क्या है, ये याद रखिएगा आप, ठीक है। और आपको कोई चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फॉल्स एविडेंस का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है।
फॉल्स एविडेंस से क्वेश्चंस आते हैं, पूछे जाते हैं। 191 भी आपसे पूछेगा। हो सकता है इस समय के सिनेरियो से लेकर के, चूंकि 192 3 पे कई बार क्वेश्चंस पूछ लिया है, तो वो आप 200, 201 और 205, ठीक है, ये याद रखिएगा, इससे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं वो, ठीक है। इसमें आते हैं क्वेश्चंस, फॉल्स एविडेंस, फैब्रिकेशन ऑफ एविडेंस। हो सकता है आपसे इस समय 195A पूछ लिया जाए इस बार, मैं गेस कर रहा हूं, लेकिन शायद हो सकता है आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है। इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में। 230 एक बार पढ़ लीजिएगा, सिर्फ सेक्शन नंबर, कॉइन की डेफिनेशन पूछ लेता है, काउंटर फिटिंग ऑफ कॉइन की डेफिनेशन पूछ लेता है, ठीक है। वेट एंड मेजरमेंट से क्वेश्चन नहीं आते हैं, 4 सेक्शन है, चाहिएगा तो आप इसके सेक्शन नंबर्स बस याद कर लीजिएगा कि ये कहाँ पे दिया हुआ है, दे आर वेरी इजी। चैप्टर 14 ऑफेंसेस अफेक्टिंग द पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी, कन्वीनियंस, डेफिशिएंसी, मॉरल्स, इससे आपके क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको बताता हूँ इससे स्पेसिफिक क्वेश्चन किस सेक्शन से आते हैं। बहुत ईजी है, 2 सेक्शन याद रखिए, 268 से जरूर क्वेश्चन पूछता है आपका, ठीक है। और चूंकि अभी आपका कोविड आया था, ठीक है, हो सकता है कि वो अडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स या अडल्ट्रेशन ऑफ फूड एंड ड्रिंक्स से आपके क्वेश्चन पूछ ले, डिसओबीडियंस ऑफ क्वारंटाइन रूल से क्वेश्चन पूछ ले। जनरली इस चैप्टर में 268 से क्वेश्चन पूछा जाता है, पब्लिक न्यूसेंस से, ठीक है। लेकिन हो सकता है चूंकि सिनेरियो ऐसा था तो इन सब से भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, 271, 2 और 4। तो आप इसके सेक्शन नंबर्स और पनिशमेंट जरूर याद रखिएगा, और कुछ याद रखिए या ना रखिए, आपको सिंपली याद रखना है कि इन सेक्शंस में दिए क्या हैं, बस पब्लिक न्यूसेंस कहाँ पे दिया हुआ है, इसके अंदर क्या लिखा है, ये आप पढ़ लीजिएगा कंटेंट में। अदरवाइज इन सेक्शन से हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाए, रिक्वायर्ड नहीं है, हो सकता है पूछ लिए जाए। (284) negligent conduct with respect to poisonous substance, 285 negligent conduct with respect to fire and combustible matters। इससे कभी कभी वहां पे क्वेश्चन होता है, आप सिर्फ सेक्शन नंबर देख लीजिएगा, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। इसमें भी ज़रूरत नहीं है। 297 एक बार आप देख सकते हैं, ट्रेसपासिंग ऑन बरियल प्लेसेस, इससे ज़्यादा की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है यूपीएपीओ के लिए। देन कम्स योर कल्पेबल होमिसाइड, मर्डर, ये आपके मेंस में पूछा जाता है जनरली, ठीक है। व्हेन आई अपीयर्ड इन माय मेंस एग्जामिनेशन दिस क्वेश्चन वाज देयर, कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर, इस पे क्वेश्चन पूछते हैं। अदरवाइज प्रिलिमिनरी के लिए सिर्फ इसके पनिशमेंट पार्ट पे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। आप इन सेक्शंस का जो एक्सप्लेनेशन है या जो एक्सेप्शंस हैं, एक्सप्लेनेशन, एक्सेप्शंस और उसके इलस्ट्रेशंस, ये 3 देख लीजिएगा बस, इससे ज़्यादा की आपको जरूरत नहीं है। 301 से लेके 311 तक इसके सेक्शन नंबर्स आप याद करिएगा। और डावरी डेथ 304A, 305, 306, इसमें क्या पनिशमेंट दी हुई है इन 4 सेक्शंस में, ये पनिशमेंट आपको देखनी पड़ेगी कि इसमें कौन सी पनिशमेंट है जो पनिशमेंट अवॉर्ड होती है, ठीक है। अदरवाइज इससे ज़्यादा आपको प्रिलिमिनरी के लिए इसमें नहीं पढ़ना है कुछ भी। देन ऑफेंसेस ऑफ मिसकैरेज, ये जनरली नहीं पूछता है, अगर पूछना होगा तो वो शायद आपसे 312 या 316, इन 2 में से कोई एक सेक्शन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। एपीओ में एक क्वेश्चन ये भी आया हुआ है, 317, एक्सपोजर एंड अबेंडमेंट ऑफ चाइल्ड अंडर 12 ईयर्स बाय पेरेंट्स और पर्सन हैविंग केयर ऑफ इट, ठीक है। तो ये इस तरह का, क्या ये कोई ऑफेंस होता है? कभी कभी वो पूछ देते हैं कि बच्चा पैदा हुआ और उसको ले जाके कहीं छोड़ दिया, कोई बेटी पैदा हुई उसको ले जाके छोड़ दिया। अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है।
आपके एपीओ के एग्जाम में ये हर्ट वाले पोर्शन पे क्वेश्चंस आते हैं, नो डाउट। तो आपको ये पूरे सेक्शंस पढ़ने पड़ेंगे 319 से लेकर के 25 तक। ये तो आपको डिटेल में पढ़ना है। डिटेल में इन द सेंस सिर्फ इसके कंटेंट रीड कर लीजिएगा, क्या है इसकी पनिशमेंट क्या है, ठीक है। अदरवाइज आपको सेक्शंस नंबर इसके सारे देखने हैं, क्योंकि कभी कभी वो 335 से भी क्वेश्चन पूछते हैं, 336 से भी पूछ देंगे, 327 पूछ देंगे, 325 पूछ देंगे। सो दैट यू नीड टू डू। आपको ये सारा सेक्शन याद होना चाहिए किसमें क्या दिया हुआ है, सिर्फ सेक्शन और हेडिंग, इससे ज़्यादा की जरूरत नहीं है। कंटेंट मैंने आपको बता दिया, 319 से लेके 325 तक के कंटेंट पढ़ लीजिए। कंटेंट में क्या पढ़ना है कि ये ऑफेंस कौन सा और इसकी पनिशमेंट क्या है, ठीक है। अदरवाइज यू जस्ट हैव टू रीड कि 326 में क्या दिया, 329 में क्या दिया, 331 में क्या दिया, 332 में क्या दिया, ओके। ये चीजें आपको देखनी पड़ेंगी इसमें, राइट। रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, ये जो आपके 4 सेक्शंस हैं 39, 40, 41, 42, 43, इन चारों का आपको कंटेंट देखना है। कंटेंट मीन्स ये क्या है और इनकी पनिशमेंट कितनी है। रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट की पनिशमेंट 1 महीने तक की होती है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की पनिशमेंट 1 साल तक की होती है। आप देख लीजिएगा इसको। इन सेक्शंस का बस आपको सेक्शन और ये हेडिंग याद रखना है, ठीक है बस। कभी कभी क्या होता है कि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट टू एक्सटॉर्ट प्रॉपर्टी, इसमें पनिशमेंट पूछ लेता है, ठीक है। तो आपको बस ये पनिशमेंट देख लेनी है इसमें। अदरवाइज आपको सिर्फ इसका सेक्शन नंबर याद रखना है और कुछ नहीं करना है इसमें। कोई डिटेल में नहीं जाना, कोई भी मेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए इतना ज़्यादा इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देन कम्स 349 फोर्स, ठीक है। इसमें आपका बेसिकली फोर्स से क्वेश्चन पूछ सकता है, इसका सेक्शन पूछता है, ठीक है। 354 A B C D, इससे आपके क्वेश्चन आएंगे कंटेंट से। कंटेंट से इन द सेंस इसकी पनिशमेंट पूछेगा और ये कब ऐड हुए, किस ईयर में ऐड हुए, ये पूछेगा। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस इसमें आते हैं वो 354 A से आते हैं। 354 A से ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि इसमें जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट को डिफाइन किया गया है, वो कह देगा कि जो सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स हैं क्या वो 354 A में कवर होते हैं। सो यू नीड टू नो। आप जब इसको रीड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये इसमें कवर होता है, ठीक है। किडनैपिंग, अबडक्शन 359, 360, 361, इनके आपको सिर्फ और सिर्फ कंटेंट जान लेने हैं। कॉन्सेप्चुअल कि किस केस में लॉफुल गार्डियन से किडनैपिंग होती है, किस केस में किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया होती है, ठीक है। इसी से आपके एक इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं यूपीएपीओ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में। एपीओ के एग्जामिनेशन में आपके जो इसके एंसिलरी सेक्शंस हैं, ठीक है, जैसे 363 आप देखिए, इससे क्वेश्चंस आए हैं 363A। तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा, इसके कंटेंट भी आपको देखने पड़ेंगे, ठीक है। ये एनालिसिस मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। 364A हो सकता है उससे भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएं, किडनैपिंग फ्रॉम रैंसम, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज बाकी आपको कुछ इसमें ज़्यादा नहीं देखना है, ठीक है। इतना बहुत है आपके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए। रेप के सेक्शंस पूछता है जनरली, जो इसके अभी रिसेंटली ऐड हुए हैं सेक्शंस, ओके। आप देखेंगे तो ये जैसे इसमें DA है, ठीक है, DB है, ये सेक्शंस इसके ऐड हुए हैं, ठीक है। ये आपके 2018 अमेंडमेंट से हो सकता है कि आपको ये सारे के सारे सेक्शंस मैच कराने में पूछ ले। हो सकता है वो आपको 376B, 376DA, 376DB और 376E ऐसे कर दे और इधर हेडिंग्स दे दे 4,
और फिर आपसे बोले कि इसको आप मैच कराइए, ठीक है। तो हो सकता है इस तरह से वो क्वेश्चन पूछ दे, तो बस आप रीड कर लीजिएगा कि इसमें क्या दिया हुआ है। ओके, इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके यूपीएपीओ के एग्जामिनेशन में। उसके बाद आप आएंगे अननेचुरल ऑफेंस। इसका आप केस याद रखिएगा, जिस केस में इसको पार्शियली सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया है। केस का नाम क्या है? नवतेज सिंह जौहर, नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो हो सकता है इससे आपसे केस पूछ ले, या फिर शायद एक एनालॉजी ड्रॉ करे कि ये पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेड है या पूरी तरह से हटा दिया गया है। तो ये आपको जानना पड़ेगा कि ये पूरी तरह से हटाया नहीं गया है, ये आज भी एक ऑफेंस है और इसकी पनिशमेंट होती है। इसको पार्शियली स्ट्रक डाउन किया गया है विद रेफरेंस टू ऑल द मेजर्स हु आर हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स हु आर होमोसेक्सुअल्स, ओके, विद कंसेंट एंड इन प्राइवेट प्लेसेस, ओके। उनके लिए ये अब ऑफेंस नहीं है जो पहले होता था। तो बस आप इतना याद कर लीजिएगा। थेफ्ट से प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आते हैं, नो डाउट अबाउट इट। तो आपको थेफ्ट के साथ साथ इसके जो थेफ्ट में एक्सप्लेनेशंस हैं और इलस्ट्रेशंस हैं वो जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इलस्ट्रेशन से क्वेश्चन आता है इसमें, ठीक है। और ये 3 सेक्शंस आप याद कर लीजिएगा कि किसमें है ये और इनकी पनिशमेंट्स। तो बहुत इजी है, एक चार्ट आप बनाइए जिसमें आप सेक्शन लिखिए, ऑफेंस की हेडिंग लिखिए और उसकी पनिशमेंट लिखिए। ये बहुत इजीली इस तरह से आपका तैयार हो जाएगा ये पार्ट, ठीक है। देन कम्स योर एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन में आप डेफिनेशन याद कर लीजिएगा। एक्सटॉर्शन में 385 386 से क्वेश्चन आता है, 2 से। तो आप ये डेफिनेशन और इन दोनों की 385 86 इन दोनों की पनिशमेंट आप देख लें। रॉबरी एंड डकैती में रॉबरी की डेफिनेशन पूछ सकता है, ठीक है। और इसकी पनिशमेंट, डकैती की पनिशमेंट, डकैती विद मर्डर की पनिशमेंट, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। इससे ज्यादा इसमें क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ये आपके अगेन उसी पैटर्न पे है, डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी सेक्शन नंबर, सेक्शन ऑफेंस प्रॉपर्टी, सॉरी पनिशमेंट। बस ये इतना आप तैयार कर लीजिएगा, इन दोनों में आपका क्लियर हो जाएगा। सेम थिंग यहां पे है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय कैरियर, बाय क्लर्क, बाय पब्लिक सर्वेंट। तो आपको सिर्फ इनके सेक्शन नंबर्स याद रखने हैं, ओनली सेक्शन नंबर्स। इससे ज्यादा ये आपसे नहीं पूछेगा यहां पे कुछ भी, ठीक है। स्टोलन प्रॉपर्टी के केसेस में ये सिर्फ सेक्शन नंबर आपसे पूछता है, जनरली 410 और 11 पे आता है, ठीक है। चीटिंग में 416 और इसका इलस्ट्रेशन ये पूछे जाते हैं आपसे, 416 एंड इसका इलस्ट्रेशन, कि चीटिंग और चीटिंग बाय पर्सोनेशन में क्या होता है, ठीक है। इसके बाद आपको ये सारे सेक्शंस से क्वेश्चन नहीं आते हैं। मिसचिफ आप पढ़ लीजिएगा, मिसचिफ का सेक्शन और पनिशमेंट। इसके बाद मिसचिफ बाय फायर एक सेक्शन है, 50 रुपीज और वैल्यू ऑफ 10 रुपीज के ये सेक्शन है। ये सिर्फ आप हेड नोट से देख लीजिएगा किस सेक्शन में दिया हुआ है, ठीक है, कि ये किस सेक्शन में दिया हुआ है। डायरेक्ट इसमें सेक्शन नंबर आपसे पूछे जाते हैं, राइट। इससे ज्यादा आपको इसमें नहीं देखने की जरूरत है कुछ भी। ये सेक्शन फिर आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है, क्रिमिनल ट्रेसपास। और उसके बाद ये सारे आपको याद करने पड़ेंगे, आपको पनिशमेंट नहीं, बस इनका याद रखिएगा कि टर्मिनोलॉजी क्या है हेडिंग वाइज, ठीक है। क्रिमिनल ट्रेसपास, हाउस ट्रेसपास, लर्किंग हाउस ट्रेसपास, लर्किंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट, फिर हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल ट्रेसपास, पनिशमेंट फॉर हाउस ट्रेसपास, house trespass in order to commit offense punishable with death, house trespass in order to commit punishable with life imprisonment, house trespass in order to commit punishable with imprisonment। इस तरह से आपको ये याद करना है सेक्शन नंबर के साथ। पनिशमेंट के सिर्फ आप देखेंगे तो आपको यहां पे 2 क्लॉज मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद पनिशमेंट इसी में दी होती है अंदर ही, इफ यू लुक एट द सेक्शन। लेकिन ये आपको 441 से लेकर के
451 तक के हेड नोट्स आपको याद होने चाहिए, सारे सारे हेड नोट। कि अगर मैंने कहा कि 441 क्या है तो क्रिमिनल ट्रेसपास, 42 क्या है हाउस ट्रेसपास, 43 क्या है लर्किंग हाउस ट्रेसपास, 44 क्या है लर्किंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट। बहुत इजी है याद करना। क्रिमिनल ट्रेसपास, हाउस ट्रेसपास, लर्किंग हाउस ट्रेसपास, लर्किंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट। फिर आ गया हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट। फिर पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल ट्रेसपास, पनिशमेंट फॉर हाउस ब्रेकिंग। हाउस ब्रेकिंग इन ऑर्डर टू कमिट एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ। हाउस ब्रेकिंग इन ऑर्डर टू कमिट द ऑफेंस पनिशेबल विद लाइफ इंप्रिजनमेंट। हाउस ब्रेकिंग इन ऑर्डर टू कमिट एन ऑफेंस पनिशेबल विद इंप्रिजनमेंट। बस आप इसको रीड करेंगे, आपको ये सेक्शन नंबर जरूर याद होने चाहिए। अगर मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा दैट हाउस ट्रेसपास इन ऑर्डर टू कमिट एन ऑफेंस पनिशेबल विद imprisonment, so you should exactly remember that it is section 451. जनरली जो आपको कंफ्यूजन आती है वहां पे, अभी तो बहुत इजी लगता है, वहां पे आप सेक्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि आप एक दो सेक्शन पढ़ के जाते हैं। वो आपको डिटेल में कुछ नहीं पूछने वाला कि इसके अंदर क्या दिया है क्या हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा आपसे पनिशमेंट पूछेगा या सेक्शन नंबर, बस इससे ज़्यादा वो आपसे कुछ भी नहीं पूछने वाला है, राइट। तो ये याद रखिएगा, इस चैप्टर में ये पूरा आप कवर करेंगे। ये बहुत ईजी है, आप 2 रीडिंग करेंगे आपको याद हो जाएगा। क्रिमिनल ट्रेसपास, हाउस ट्रेसपास, लर्किंग हाउस ट्रेसपास, लर्किंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट। पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल ट्रेसपास, ओके, पनिशमेंट फॉर हाउस ट्रेसपास। देन ट्रेसपास, हाउस ट्रेसपास इन ऑर्डर टू कमिट एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ। हाउस ट्रेसपास इन ऑर्डर टू कमिट एन ऑफेंस पनिशेबल विद लाइफ इंप्रिजनमेंट। हाउस ट्रेसपास इन ऑर्डर टू कमिट एन ऑफेंस पनिशेबल विद इंप्रिजनमेंट। हो गया कंप्लीट पूरे 441 से लेकर 451 तक। बहुत सिंपल है। अगर आपको नहीं याद होता है, एक सिंपल तरीका उठाइए, 3 कॉलम बनाइए, सेक्शन नंबर लिखिए, हेडिंग लिखिए और उसकी पनिशमेंट लिख लीजिए। बस इससे बाहर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। यही क्वेश्चंस होते हैं जनरली स्टूडेंट्स, ओके, मार्क द इनकरेक्ट आंसर एंड दे प्रिज्यूम दैट दे हैव गिवन द करेक्ट आंसर। वो जब मार्क्स आते हैं, रिजल्ट आते हैं, तब लगता है कि नहीं जी यहाँ तो गलत हो गया। देखिए ये 446 में हाउस ब्रेकिंग था, हाउस ट्रेसपास नहीं था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट था, सिर्फ हाउस ब्रेकिंग नहीं था। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। इसीलिए मैंने आपका सिलेबस स्टार्ट ही किया इंडेक्स से, क्योंकि शायद आपको 40 में से 10 क्वेश्चन सिर्फ इंडेक्स से मिल जाए, जो एक बहुत बड़ी मार्जिन होती है फॉर योर सिलेक्शन। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ टू रीड द इंडेक्स, how to make a table for the index, which part we should focus more on. Okay, next part देखिए इसमें। फोर 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 इसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने जो आपको बताया 441 से लेकर 451 तक वो याद कर लीजिएगा, उसमें से आपके क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे प्रीलिम्स के। ऑफेंसेस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट्स एंड प्रॉपर्टी मार्क्स, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कभी कभी नहीं आता है, लेकिन फॉर्जरी पूछ सकता है, फॉल्स डॉक्यूमेंट पूछ सकता है। तो ये 2 सेक्शन आप याद रखिएगा कि कहाँ पे है, किस नंबर में दिया हुआ है। Then again this is also not important. Currency note and bank notes are not important. Okay, criminal breach of contracts and services again not important for APO. Then comes your offenses against marriage. Yes, this is important. ज़्यादा sections इसमें नहीं है, 493 से लेके 498, 494 और 498 पे डायरेक्ट क्वेश्चन वो नहीं पूछेगा, इस पे आपको केस लॉस पूछेगा। ठीक है, क्वेश्चन जो एपीओ में आते हैं वो आएंगे 495 से, 496 से, 497 से, 493 से। तो अगेन सेम थिंग, मेक अ टेबल, सेक्शन नंबर, ऑफेंस एंड पनिशमेंट, दैट्स इट। बाकी इन दोनों के लिए आप अपने केस लॉस तैयार कर लीजिएगा जो रिसेंटली अभी हुए हैं। ठीक है, जो आपको जब सिलेबस पढ़ाया जाएगा तो बताया जाएगा। 498A ये आपसे पूछेगा, इस पे 2 जजमेंट्स आए हैं कि कब मैंडेटरी अरेस्ट होगा, कब नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत अच्छा जजमेंट है 498A के अरेस्ट की गाइडलाइंस को लेकर के, अरनेश कुमार का जजमेंट, वो भी आपसे पूछ सकता है यूपीएपीओ के एग्जाम में। अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का एक जजमेंट है जो आपको पता होना चाहिए
कि 498A के केसेस में अरेस्ट कब होगा कब नहीं होगा, तो वो सिंपल आपसे पूछ सकता है। अदरवाइज इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे वो नहीं पूछेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया स्कोप कितना है 35 से 40 क्वेश्चंस का, तो सारी चीज़ें वो आप ही से नहीं पूछ लेगा यहाँ पे। ओके, तो प्रिलिमिनरी के लिए आपको जो मैंने बताया ये बहुत स्मार्ट तरीका है चीज़ों को आइडेंटिफाई करने का। डेफेमेशन में वो क्वेश्चन सारे तो नहीं पूछता, लेकिन डेफेमेशन का जो आप एक्सेप्शंस हैं वो जरूर पढ़ लें, वो और उसके इलस्ट्रेशंस, उससे क्वेश्चन जरूर पूछेगा कि क्रिमिनल डेफेमेशन के जो आपके एक्सेप्शंस हैं उससे क्वेश्चन आते हैं, राइट। देन पनिशमेंट फॉर डेफेमेशन, योर 501, 502 इन सब से आपके क्वेश्चन नहीं आने हैं, बहुत ज़्यादा इस पर आप टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। 503, 504, 506 इन 3 से क्वेश्चंस पूछ सकता है। अगेन सिर्फ आपको यहाँ पे इसका क्वेश्चन नंबर और ये याद रखना है बस, और तीसरा कुछ याद नहीं रखना है, ठीक है। देन फाइंड योर लॉ ऑफ अटेम्प्ट। लॉ ऑफ अटेम्प्ट आपको सेक्शन इसके कंटेंट पढ़ लीजिएगा, इस पे एक मैक्सिम है, ओके, स्पेशियबिलिस जनरलिया एक मैक्सिम करके है, वो आप याद रखिएगा। हमेशा स्पेशल लॉज विल ओवरराइड दी जनरल लॉज, इसको 307 के साथ पढ़ा जाता है। आपको इसमें वो क्वेश्चन पूछेगा, इसका जो कंटेंट है उस पर पूछेगा क्या पनिशमेंट होती है क्या पनिशमेंट नहीं होती है, इसकी थ्योरीज हैं कुछ, उस पर क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। एक दो पूछ लेगा ऑन जॉब थ्योरी है या नहीं। अ पर्सन हैज़ ओपन द बॉक्स, ओके, बट ही डिड नॉट फाइंड एनीथिंग इन द बॉक्स, वेदर इट इज थेफ्ट, अटेम्प्ट टू थेफ्ट, सो आपका आंसर सिंपल होगा अटेम्प्ट टू थेफ्ट, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा, इसके इलस्ट्रेशन देख लीजिएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट दी ओवरऑल overview and the analysis of the index part of IPC, okay? So इस तरह से आपको पढ़ना है। मैंने आपको important इसमें से 100 सेक्शंस बताए हैं, जिसमें से आपके हो सकता है बहुत आराम से 30 से 35 क्वेश्चन जो IPC के हैं वो पूरे कवर हो जाएं। अदरवाइज आपको पूरी चीज़ों पे डीप में स्टडी नहीं करना है, ना ही प्रीलिम्स में इतने डीप में आएगा, ना ही मेंस में इतने डीप में आएगा, लेकिन जो चीज़ें बताई गई हैं वो आपको इसी तरह से पढ़ाई करनी है। क्यों? क्योंकि ये एक कंपटीशन है, यहाँ पे आपकी नॉलेज के साथ साथ प्रीलिम्स में आपको अपना सिलेक्शन लेना है, सो दैट आप अपनी नॉलेज दिखा सकें, ओके। इन ऑर्डर टू प्रूव योर नॉलेज, टू बी अ फिट पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर इन यूपी पुलिस डिपार्टमेंट, यू हैव टू क्लियर योर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि पहले आप इंडेक्स को एनालाइज कर लें, लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देख लें, किससे क्वेश्चन आते हैं किससे नहीं आते हैं, ये चीज़ आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। किस सेक्शन पे हमें कितना पार्ट देना है, किस सेक्शन पे हमें कितना पार्ट नहीं देना है, नहीं कवर करना है, इट शुड बी वेरी वेरी क्लियर, ओके। सो दैट इज ऑल फॉर द डे। इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल स्टार्ट विद द सिलेबस, आई विल स्टार्ट विद द points that we have discussed, that we are going to discuss in detail for the purpose of preliminary examinations. If you have any question, you can ask. You can drop your question in the chat box, that same shall be answered. Anyone, any question? Drop your question in the chat box, the same shall be answered well within the time through email, okay. So all right, thank you so much. For any detail, just contact your lordship. Thank you so much.